Hello friends, good afternoon, Assalamu alaikum and Namaste. Friends, this is Dr. Juhi Naikwade, your friend, back again with another video. Last video में हमने देखा था what is stress in detail. So today in this video we are going to deal in detail on what is anxiety. So before starting my video, मुझे एक बहुत important चीज आपसे share करनी है या बतानी है. Friends, we are losing many of important people, many of important lives. हमारे आसपास हम अगर देखेंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करते हैं जिसको हमारी जरूरत होती है. सो फ्रेंड, इफ you are suffering from any of the stressful condition, any of the anxious feeling, any of the depressive state or any other psychiatric condition, please speak it out. आपके inner feelings express करो. Take help. भले ही आपके कोई close ones हो, आपके friends हो, आपके personal doctors हो, family physician हो, या any go and visit any psychiatrist, but don't keep it in within. So वो आपको अंदर ही अंदर खा जाएंगे. So friends, please focus करना ये point पे and start taking treatment on whatever you are feeling and whatever आपका जो भी condition है, just go and share it with your friends, your families, etc. So let's start today's topic, that is anxiety. So I'm going to share one of my presentation which I have made on anxiety. So I'll share my screen here with all of you. So this is me, that is Dr. Juhi Naikwade, MD Psychiatry. So friends, let's start. So anxiety, what is anxiety? As defined by American Psychological Association, anxiety is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure. Okay. So जैसे हमने last video में देखा था differentiation between anxiety, stress and depression. So anxiety is continuous worry or continuous thought about something. तो और एक major differentiation point है, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं विद एंजाइटी एंड विद डिप्रेशन. सो एक चीज हमेशा याद रखना, एंजाइटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फ्यूचर इवेंट एंड डिप्रेशन इज ऑलवेज रिलेटेड विद द पास्ट इवेंट. सो एंजाइटी जिसको होता है, ये वाले लोग ड्वेल नहीं करेंगे ऑन पास्ट इवेंट्स. ओके, सो दिस इज एंजाइटी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोबियाज. सो फोबिया एक एक्सप्रेशन है एंजाइटी का. सो देयर आर सो मेनी फोबियाज. तो मुझे ये वीडियो थ्रू, ये प्रेजेंटेशन थ्रू हेल्प आउट करना है आप लोगों को टू रूल आउट, या फिर देखो, मतलब अपने आप को जज करो कि आपको कौन सा फोबिया है. यू कैन लेबल योर सेल्फ एज, मतलब कौन सा फोबिया आपको है आप अच्छे से लेबल कर सकते हो. So there are so many phobias. First of all, we'll see what phobia is. It's marked and disproportionate anxiety about a specific thing or situation. एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर चीज होती है, या कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, किसी को होगा फियर ऑफ डॉग, किसी को होगा फियर ऑफ कैट, एक्सेट्रा. सो दिस फियर मस्ट बी कंसिस्टेंटली एंड persistently present. The person experiences massive anxiety when exposed to the feared object and tries to avoid it at all cost. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट से उसको डर है, वो चीज को वो हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेगा. ही विल, मतलब वो उसके पास जाकर, या मतलब ये लोग जो रहेंगे जिसको फोबिया होता है, वो ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाएंगे, दूर से ही स्क्रीम करेंगे. सो अप टू 25% ऑफ पॉपुलेशन हैज स्पेसिफिक फोबियाज एंड दिस फोबियाज आर मोर कॉमन इन फीमेल्स. सो दिस वाज अबाउट फोबिया. नाउ देयर आर सो मेनी फोबियाज. we'll check one by one. So first is acrophobia. इसमें आप देख सकते हो, ये ओल्ड मैन है, इसको फियर ऑफ हाइट्स है. सो ये पीपल को सिम्टम्स आएंगे ऑफ एंजाइटी, जहाँ पे भी वो, अगर वो कोई लंबी बिल्डिंग देखेंगे, लंबी बिल्डिंग से नीचे देखेंगे, तो दे विल, मतलब उनको सिम्टम्स आना चालू करेंगे ऑफ एंजाइटी एंड फोबिया. ओके, सो दिस वाज एक्रोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ हाइट्स. नाउ सेकंड इज एगोरोफोबिया. These people has fear of open और crowded places. So जब भी ये, यहाँ पे आप ये पिक्चर थ्रू देख सकते हो, जब भी आप ये crowded places में जाओगे तो यहाँ पे आपको lost वाली फीलिंग आएगी. ओपन प्लेसेस में जाओगे, वहां उनको lost वाली फीलिंग आएगी. So this is nothing but agoraphobia. Now third is allurophobia, that is fear of cats. ये लोग जब भी cats को दूर से या पास से देखेंगे, they start screaming. So this is allurophobia. Now hydrophobia,
दैट इज फियर ऑफ वाटर। बहुत कॉमन फोबिया है, बहुत सारे लोगों में पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज पीपल अवॉइड गोइंग टू द प्लेसेस जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे बीच हो, जहाँ पे स्विमिंग हो, ये सब चीजें वो लोग अवॉइड करते हैं। दैट इज हाइड्रोफोबिया। नाउ दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। दिस पीपल स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स जब वो किसी लिफ्ट में रहेंगे, नैरो प्लेसेस में जाएंगे, तो वहां पे उनको सफोकेशन या वहां पे उनको सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डेवलप करेंगे। So this is claustrophobia. Now is xenophobia. These people have fear of dogs. जब भी ये dogs देखेंगे, they start screaming, somewhat like fear of cats. Now misophobia. These people have fear of dirt and germs. इनको हम confused हो सकते हैं with OCD peoples, but these people have fear of dirt and germs. इसलिए वो बार बार खुद के हाथ क्लीन करेंगे, खुद का फ्लोर क्लीन करेंगे, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगहों पे देखेंगे विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइक कहीं डर्ट नहीं है, कहीं कुछ ना हो, दैट्स व्हाई दे कीप ऑन क्लीनिंग। ओके, सो दिस पीपल, दिस इज कॉल्ड एज अ मिसोफोबिया। नाउ पायरोफोबिया, as the name suggests, fire, that is fear of fire. These people start screaming when they see fire. So xenophobia, as we know, xenophobia is fear of strangers. In picture we can see fear and hatred of strangers, of foreigners, or of anything that is strange or foreign. So this is xenophobia. Now zoophobia, fear of animals. कोई भी हो, भले ही स्नेक हो, छोटे से एंट्स हो, कुछ भी हो, उनको ये सब चीजों का डर रहेगा। तो हमारे वहाँ पे एक पर्टिकुलर फोबिया नहीं है, पर्टिकुलर एनिमल का फोबिया नहीं है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, देयर इज स्नेक, देयर इज बटरफ्लाई, देयर इज लिजर्ड, देयर इज फ्रॉग, देयर इज माउस, एक्सेट्रा। दिस इज जूफोबिया। So in this way you can judge what's your phobia, just देखो, and so hopefully phobias are clear. So आप देख सकते हो कि आपको कौन सा phobia है। I can tell that I have fear of water, so hydrophobia, I have claustrophobia, etc. Okay, now let's start with anxiety disorder. There are 11 types of anxiety disorder. Phobias are also included in anxiety disorders. So let's see one by one. So this टाइप्स और दिस मतलब ये जो हम लोग 11 टाइप्स देख रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो अभी साइकियाट्री में चल रहा है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो उसके हिसाब से हम लोग ये 11 टाइप्स देखेंगे, जिसमें ये फोबियाज आर आल्सो इंक्लूडेड। ओके, सो फर्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये पिक्चर थ्रू आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बच्चे को अपनी मम्मा से दूर जाने का डर है, तो ही इज क्राइंग। तो ये अगर हम देखें इन डिटेल तो ऐसे है, दैट इज फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस, एंशियस व्हेन separating from home or loved ones, leaving the home, sleeping away in a different room, worry about harm to loved ones, nightmares and physical symptoms. So यहाँ पे ये लोगों को अपने लोगों से, अपने क्लोज वन से दूर जाने का डर रहेगा। लाइक एग्जांपल ले सकते हो, कोई बच्चा है जिसको हम हॉस्टल में भेज रहे हैं, तो इनको वो उस चीज का डर रहेगा कि ये मतलब उनको ऐसा लगेगा कि इसको जानबूझ के अलग कर रहे हैं। सो यू कैन टेक योर एग्जांपल ऑफ तारे जमीन पर पिक्चर। तो वहां पे भी वो होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। So this is first point, first type. Now second is selective mutism. These people are not dumb deaf. यहाँ पे they are unable to speak in certain situations. So there is inability to speak in certain social situations. And इसको ये डायग्नोज करने के लिए आपको ये वाला जो मतलब ये जो पॉइंट है दैट दे आर अनेबल टू स्पीक, ये एटलीस्ट 1 मंथ तक कंटिन्यूस रहना चाहिए, एंड in absence of other psychiatric condition or other any condition. So inability to speak in certain social situations for at least 1 month with absence of any other condition. So उनको बोलना बहुत कुछ रहता है, but they are unable to speak, they are anxious, they start tremoring. तो ये अगर आप ये लोगों को बोलोगे कहीं पब्लिक में जाकर कुछ बोलो, they are unable to speak. So this is selective mutism. Now third, social anxiety disorder, that is social phobia, irrational fear of public situations, speaking in public, eating in public, using public bathrooms, it's also called as shy bladder, may be associated with panic attacks. So these are the peoples जहाँ पे उनको अगर बोलेंगे ऑन द स्पॉट, अगर उनको हम बोलते हैं गो एंड स्पीक, और जाकर कोई स्पीच दो, so these are the people which starts developing symptoms of anxiety, like
उनको स्वेटिंग होगा, दे स्टार्ट फील नर्व, दे स्टार्ट मतलब उनको नर्वसनेस लगेगा एंड वो लोग नहीं जा पाते हैं स्टेज पे एंड दे कैन नॉट स्पीक देयर। सो ये लोगों को हम थर्ड टाइप में फिट कर सकते हैं, लाइक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. So it's also called as social phobia. So this was the third type. Now coming to the fourth type, that is panic disorder. So panic disorder is characterized by spontaneous panic attacks. May occur alone or with agoraphobia. As we have seen, agoraphobia मतलब fear of open places or crowded places. ठीक है? So ये या तो पैनिक डिसऑर्डर एज अ पैनिक अटैक आएगा या तो इन विथ along with agoraphobia. So can lead to alcohol or drug abuse, depression, and occupational and social restrictions. So ये लोग पैनिक अटैक्स अवॉइड करने के लिए ड्रग, अल्कोहल ये लेना चालू करेंगे. सो ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज इज कॉमन इन दोज पीपल. सो पैनिक अटैक के लिए मेडिकेशन बहुत जरूरी है. मेडिकेशंस आर ऑफन नेसेसरी. So now fifth, that is agoraphobia, anxiety of being in crowd or open places or outside home, from which escape is feared to be impossible. The situation is avoided with marked distress. तो यहाँ पे होगा, उनको डर रहेगा जब कोई पब्लिक प्लेस, क्राउडेड प्लेसेस में जाने को बोलोगे तो उनको बहुत डर लगेगा एंड दे विल अवॉइड सच सिचुएशन. सो उनको लगेगा कि वहां से निकलना इम्पॉसिबल है, तो वो फियरफुल कंडीशन रहेगा उनके लिए. सो दिस इज अगोराफोबिया. Now sixth is generalized anxiety disorder, which is called as GAD, that is generalized anxiety disorder. Excessive worry. अब यहाँ थोड़ा नहीं होता है. Excessive marked worry about everyday life circumstances, events or conflicts. छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी, छोटी छोटी चीजों को लेके वरी इन अ मार्क्ड वे, इन एक्सेसिव कंडीशन. तो ये फिट होगा GAD में. So can be confused with other medical psychiatric conditions. Anxiety is difficult to control, is subjectively distressing and produces impairments in important areas of person's life. मतलब ये स्मूथली इजी गोइंग उनके मतलब वर्किंग सिचुएशंस नहीं रहेंगे, वर्किंग प्लेसेस पे वो लोग इजी गोइंगली नहीं रहेंगे. सो वहां पे ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करते ही रहेंगे बिकॉज छोटी छोटी बातों को इनको हैंडल करना नहीं आता है. सो GAD में ये लोग फिट हो सकते हैं. देन सेवेंथ, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स or anxiety developing during or soon after intoxication of or withdrawal from a substance or medication that is known to produce a symptoms. कोई अगर हमको हैबिट होगा एक पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर ड्रग लेने का, अगर हम वो स्टॉप करते हैं, सो ही स्टार्ट्स फीलिंग एंशियस, ही स्टार्ट्स डेवलपिंग सिम्टम्स. सो ये कैटेगरी में आते हैं. सो एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, दैट इज एट द टाइप. अब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी अदर कंडीशंस है जिसकी वजह से एंजाइटी फीलिंग आती है. मेनी मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कैन कॉज एंजाइटी सिम्टम्स. एग्जांपल माइग्रेन, हाइपोक्सिया, विल्सन्स डिसीज एक्सेट्रा. सो ये कंडीशंस में भी हम एंजाइटी देख सकते हैं. नाउ नाइन्थ टाइप इज अदर स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर नॉट मीटिंग फुल क्राइटेरिया, जिसके फुल क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो हम उनको नाइन्थ टाइप में, दैट इज अदर स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर में फिट कर सकते हैं. And 10th is unspecified anxiety disorder. This condition doesn't meet criteria for any of the above listed anxiety disorders despite resulting in significant social and occupational dysfunction. जो full criteria match ही नहीं कर रहे कोई भी, जहाँ पे diagnosis जो है मतलब this condition doesn't meet criteria for any of the above. जितने हमने अभी तक 9 types देखे हैं वो उसमें fit नहीं होता है, लेकिन impairment है. वो जो पर्सन है उसको डिफिकल्टीज आ रहे हैं, वेदर इट इज पर्सनल, वेदर ऑक्यूपेशनल हो, कुछ भी हो, तो वो वैसे टाइप मतलब जो वो कैटेगरी आती है उनको हम 10th टाइप में डाल सकते हैं, दैट इज अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर. देयर इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द डायग्नोसिस, पूरा डायग्नोसिस नहीं हो पाता है. सो नाउ 11th, मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर. पेशेंट्स विद बोथ एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स who do not meet the diagnostic criteria for either anxiety disorder or a mood disorder. मतलब जिस जहां हम कंफ्यूज्ड हैं, ना ही वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में फिट हो रहे हैं, ना ही एंजाइटी में फिट हो रहे हैं, उनको यहाँ फिट कर सकते हो. दैट इज 11th टाइप, मिक्स एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर. ओके, सो होपफुली अभी तक हमने 11 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखे हैं, तो एंड फोबियाज देखे हैं. तो ये अभी तक पिक्चर क्लियर है अबाउट टाइप्स एंड अबाउट फोबियाज. सो आगे बढ़ते हैं. सो इटियोलॉजी, नाउ कॉजेस. बायोलॉजिक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, देन
साइकोएनालिटिक हो सकता है. So we'll deal one by one. First is biology. Now gamma aminobutyric acid, that is GABA, okay, causes CNS hyperactivity. मतलब ब्रेन में जब ये गैमा एमिनोब्यूटेरिक एसिड डिक्रीज होते हैं, सो दे कॉज CNS हाइपर एक्टिविटी. तो वहां पे क्या होगा? एंजाइटी. So decrease GABA, that is GABA, cause CNS hyperactivity. Okay. Alterations in serotonergic system and increased dopaminergic activity, increased activity in temporal cerebral cortex, and hyperactivity in locus coeruleus, which can produce anxiety and panic. Hyperactivity and dysregulations in amygdala, social anxiety दे सकता है. amygdala is an important part of limbic system and सबसे major role अगर emotions में है तो that is of amygdala. So amygdala, its role includes detecting, coordinating and maintaining emotional or fearful emotions जो भी होता है. So the amygdala integrates information from multiple sensory areas to assess for threats with consideration of input regarding the context of presenting stimulus. Once a threat has been detected by the amygdala, a rapid response is coordinated. तो amygdala का importance क्या है? उसका रोल ये है कि वो डिटेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है fearful emotions. एंड जैसे ही fear डिटेक्ट हो गया, एक रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, that is from amygdala. ये हो गया biologic. Now we'll see psychoanalytic. That is according to Freud, unconscious impulses होते हैं कुछ like sex, aggression, etc. जो कि consciousness में burst out हो जाएंगे. Unconscious impulses threaten to burst in a consciousness and produce anxiety. Okay, so this is psychoanalytic theory according to Freud. Now the genetic. Half the patients with panic disorder have one affected relative. Family history रहेगा. 5% of persons with high levels of anxiety have polymorphic variant of gene associated with serotonin transporter metabolism. So this was etiology. Now coming to the symptoms of anxiety, we can see sensitivity, noise sensitivity रहेगा. Dry mouth. जैसे हम बोल सकते हैं social anxiety disorder में जो जिन लोगों को हम बोलेंगे कि go on stage and speak something, give a speech, etc. उनका गला सूखना चालू होगा. Dry mouth, trembling, etc. So dry mouth, difficulty in swallowing, palpitations, restlessness, tremor, gastrointestinal discomfort में you can take acidity, जो भी है. Then headache, insomnia, difficulty in sleeping, constriction in chest, tightness लगेगा. Then poor concentration, they cannot concentrate properly. Okay, so these are the symptoms of anxiety. Now coming to the treatment part, psychotherapy. जैसे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, speak it up, just keep on talking about your feelings, inner feelings. So ये आपको बहुत सारी चीजों से रोक सकता है. Psychological therapies like talking therapies are generally considered best line treatments in all anxiety disorders because they may provide lasting response and lower relapse rates than pharmacotherapy. Psychotherapy, however, is less available, more demanding, and takes longer time to work than pharmacotherapy. If the patient is unable to tolerate the anxiety or associated distress, then medicines are often used before psychotherapy or while awaiting psychotherapy. The specific psychotherapy with the most supporting evidence in anxiety disorder is cognitive behavioral therapy, that is CBT. Cognitive behavioral therapy focuses on the here and now and explores how the individual feels about themselves and others and how behavior is related to these thoughts. उनके जो थॉट्स होते हैं, यहाँ पे उनके थॉट्स जानने की कोशिश की जाती है. व्हाट दे आर थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव क्या है चीजों को लेके, एंड उनका इससे बिहेवियर जज होता है एंड उसके ऊपर उनका ट्रीटमेंट होगा, उनकी थेरेपी इस बेस पे होगी. सो दिस इज साइकोथेरेपी. अगर फार्माकोथेरेपी है तो देयर आर सो मेनी SSRIs, ट्राइसाइक्लिक्स, एंटीकन्वर्जेंट्स, एंक्सियोलिटिक्स, एक्सेट्रा. सो दिस इज साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी. सो दिस इज द ट्रीटमेंट पार्ट फॉर एंजाइटी. Last but not the least, highlight portion or most important thing I want to tell you is happiness is everything, which helps you stay away from the unnecessary anxiety and depression. So हमारे बॉडी में 4 important हार्मोन्स हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस डिटरमाइन करते हैं. हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ ये 4 हार्मोन्स पे डिपेंड करता है हमारा. एंडोफिन्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लाफ्टर, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये चीजों से एंडोफिन्स रिलीज होता है बॉडी में. एंडोफिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स. ये नेचुरली आपका पेन कम करती है, आपको रिलैक्स फील करवाती है एंड कीप्स यू अवे फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन.
So endorphins, ठीक है. Second is dopamine. Third is serotonin and fourth is oxytocin. Dopamine का रोल कब होगा? When we get appreciated and या फिर हम किसी को appreciate करते हैं छोटी छोटी बात के लिए. मतलब कोई भी चीज अगर कोई अच्छा कर देता है तो उसको अप्रिशिएट करो, तो इससे क्या होगा? डोपामाइन रिलीज होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी. सो दिस डोपामाइन प्लेज योर इंपॉर्टेंट रोल लाइक अप्रिसिएशन. आपको भी मिलता है तो आपको डोपामाइन रिलीज होगा एंड यू विल फील हैप्पीनेस. एंड आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो उनको वो खुशी मिलेगी. सो कीप ऑन अप्रिशिएटिंग, लेते भी रहो देते भी रहो. सो दिस इज द रोल ऑफ डोपामाइन हार्मोन. थर्ड इज सीरोटोनिन. सीरोटोनिन जहाँ पे आप किसी के लिए बेनिफिशियल होते हो, जहाँ आप अपना खुद का टाइम किसी और के अच्छे के लिए देते हो, वहां पे सीरोटोनिन रिलीज होगा. वहां पे आपको कुछ अच्छा लगेगा, लाइक आप किसी को यूजफुल थे, आप किसी को हेल्पफुल थे, तो वो सीरोटोनिन आपको एक अलग खुशी देगा. दिस इज द रोल ऑफ सीरोटोनिन हार्मोन. नाउ फोर्थ इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंस ये है, जब भी आपकी खुशी, मतलब आपको खुशी तब मिलती है व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, इनर फीलिंग जो होती हैं आपकी इमोशंस, लाइक हग, kissing, then shaking hands, etc. So इससे एक अलग आपको खुशी मिलती है, अलग रिलैक्सेशन मिलता है. So जहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, एक वार्म टच, एक हग, मतलब जब आप सैड हो, लो मूड होता है, तो बोला जाता है कि एक छोटे बच्चे को हग करो. तो ये क्यों? बिकॉज वहां पे आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. सो वहां पे आपको खुशी मिलेगी या वहां आपको अच्छा लगेगा. सो ऑक्सीटोसिन बोलते हैं ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जादू की झप्पी. सो वो यहाँ पे ये है. एंड एंडोफिन्स वाला रोल मुन्ना भाई में हम देखेंगे डॉक्टर अस्थाना, हु कीप्स ऑन लाफिंग. सो वो पागल जैसा साउंड करेगा, बट दैट इज द मेथड. Laughter will produce endorphins, that is natural painkiller, and oxytocin, that is jadoo ki jhappi, will release serotonin. So endorphin, dopamine, serotonin and oxytocin, ये चार ही हार्मोन्स आपके हैप्पीनेस डिटरमाइन करते हैं. सो जस्ट ये चार चीजें करो एंड जस्ट एक हैप्पी लाइफ जियो, दैट्स इट. सो in order to feel more and more happy day by day, motivate ourselves and have some fun which will release endorphins. Appreciate others for any small or big thing which will release dopamine. Inculcate sharing habit through you to others which will release serotonin. Hug your family and friends which will release oxytocin. So stay happy friends, stay happy and just stay away from anxiety, depression or any psychiatric condition. Pick it up and just relieve yourself. In this way I would like to conclude today's lecture. So hopefully anxiety आपको अच्छे से समझ आ गया है. In upcoming video I'll speak about depression. So stay tuned. Thank you. Bye bye.